So, Assalamualaikum. The topic for today is retinitis pigmentosa. Uh, the learning objective for today's presentation is what is retinitis pigmentosa, its management, its diagnosis, the counseling of the patient, and recent advances. It is a clinically and genetically a diverse group of inherited dystrophy, which initially predominantly involve rods and then finally involves cone also. So it is a rod cone dystrophy. So in generally in all the fundal dystrophies, all photoreceptors get involved, rods as well as the cone. But depending upon whether it involves rod first or cone first, it is called rod cone dystrophy or cone rod dystrophy, depending upon which photoreceptor is involved in the initial stage of the disease, and eventually both receptors get involved. We know that is the most common hereditary fundal dystrophy. The prevalence is 1 in 5,000, and in some books it's 1 in 3,000 to 1 in 5,000, depending upon the different demographic distribution. Well, the age of the onset, its progression, and the visual loss that is associated with it, and the severity of the disease, it depends upon the mode of inheritance. Most severe form is X-linked recessive, but fortunately, it's very less common. And then we have autosomal recessive, which is also a severe form in which there is complete visual loss by second to third decade of life. And then we have a sporadic, which has a better prognosis, and in which the central vision is preserved by the sixth decade of life. And then we have autosomal dominant, which it has the best prognosis. Then we have a syndromic RP. They are atypical RP, also called the atypical RPs, in which there are RP-like features in the eye, and also their systemic association that is associated with it. The inheritance pattern for the atypical or syndromic RPE is autosomal recessive or mitochondrial. Then we have Leber congenital amaurosis. 5% of all the children in the RP present at really early age, at the time of birth or 6 months or 1 year of age, and they are categorized into a separate category. They are called the Leber congenital amaurosis. It is also associated with various systemic features. We know the classical triad that we all have seen and studied in the RPE is waxy pallid disc, and the vessels become thin and attenuated. The vascular attenuation is there, and there is a hypopigmentation. There is a pigmentary deposits at the periphery and the mid-periphery. This is the pigment deposit in a bony spicule pattern, which is typical of RPE. So the classical triad. By classical triad, we mean that mostly the patient will present with this, but it can also be associated with other clinical features. So, as it's a rod dystrophy or just a cone, fundal dystrophy, there's a bilateral involvement. There's always involvement of the both eye. It is mostly symmetrical, but it can be asymmetrical. And then we know that patient presents with the difficulty in the night vision initially, and there is impairment of the peripheral vision, and there is a rod because of the rod dysfunction, and there's this disease is progressive in nature. So the patient will initially present with the difficulty in night vision, then there'll be a visual loss. Initially central vision will be preserved, but eventually all the vision will be affected. So in history, we'll get the history of the night blindness, and there's a difficulty in mid-peripheral vision. Initially जब patient present करता है तो visual acuity इतनी affect नहीं होती, because visual acuity is a center of the vision जो है वो preserved होती है, because end तक तो visual acuity is preserved initially जो हम patient को देखते हैं तो contrast sensitivity उसकी ज़्यादा affect होती है bilaterally. Our science में हम again if for the fundus we go for the fundus examination, the bony spicules, that is the pigmentation of the periphery and mid-periphery hyperpigmentation, and the bony spicules can be seen, and arterial attenuation and tessellated fundus because of the RP atrophy and hyperpigmentation and the myopia that is associated with it.
देयर इज अ क्रोइडल शो एंड टेसिलेटेड लुक होती है फंडस की। मैक्यूला के अंदर मैक्यूलर एट्रोफी हो सकती है, सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा हो सकते हैं, ईआरएम हो सकती है। Refractive errors are associated with it. That can be astigmatism or myopia. Optic drusions as another association. जो रेयर एसोसिएशन है इसकी, उसके अंदर जो है वो केटोकोनस, ग्लूकोमा है और इस तरह की चीजें। There's another picture जिसमें शायद ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, but there's a center is paired late stage तक, and there is a hyperpigmentation and bony spicule जो पूरी पेरिफ्री और मिड पेरिफ्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगेन वैस्कुलर एटेन्युएशन है और पेल डिस्क है। जरूरी नहीं होता कि हर पेशेंट के अंदर सारे फीचर्स हों, सो मिक्स एंड मैच है। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज अ पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, और ये सबसे कॉमनली ऑटोसोमल डोमिनेंट जिनका ट्रेड होता है, जिसके अंदर लेसर स्वेरिटी आरपी की होती है, उसके अंदर पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट ज्यादा कॉमन होते हैं। देन वी हैव ओपन एंगल ग्लूकोमा है, केटोकोनस है, पीवीडी है। केटोकोनस और ओपन एंगल ग्लूकोमा, they are more common in autosomal recessive form. Then we have intermediate uveitis हो सकता है, exudative RD हो सकती है, लेकिन they are very uncommon and rare associations. ज्यादा common associations जो है वो ये चार हैं। जनरली इसका डायग्नोसिस जो होता है वो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी हो जाता है, बट एट सम टाइम आपको इनिशियल स्टेजेस पे या जिस तरह से भी है, आपको फैमिली जेनेटिकली चीज़ों को ट्रेस करने के लिए, अगर आपको कैरियर्स को ट्रेस करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ सकती हैं। एवरी इन्फेक्शियस कंडीशन जो कि हाइपर पिगमेंटेशन फंगस की कॉज करती है, वो इट हैज टू बी रूल्ड आउट। इसमें सिफिलिस है, यूवियाइटिस है, और मेडिकेशंस जो हैं उनकी टॉक्सिटी है, दैट कैन कॉज द पिगमेंटेशन की अपीयरेंस है, एंड इट कैन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी आती है, सो दैट वी माइट नीड टू रूल इट आउट। देन ERG इज द बेस्ट एंड द मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर जो है इसका ERG है। नाउ व्हाट इज ERG? ERG is the electrical potential that is generated by the photoreceptors that include rods and cone on the stimulation with the light stimulus. Initially A wave भी है, B wave भी है। Initially हमारे पास because rods are affected, तो initially scotopic response जो है वो कम हो जाएगा, but eventually जब rods और cones दोनों affect हो जाएंगी तो scotopic जो scotopic है, combined है और photopic, all responses will be diminished और बिल्कुल ERG straight हो जाती है। इसमें A wave और B wave दोनों affect होती हैं और implicit time भी affect होता है। What is implicit time? Implicit time वो lag है, जो stimulus और electrical potential generate होने के दरमियान का जो time lag है, that is called implicit time. तो जैसे जैसे photoreceptors का response affect होता है, वैसे वैसे implicit time जो होता है वो increase होता जाएगा। So this is a diagnostic test for retinitis pigmentosa. EOG is also subnormal. इसमें जो light response है ये भी affect हो जाता है। Initially जब clinical features are not very clear और initial diagnosis suspect कर रहे हैं तो dark adoptometry is a very good investigation, जिसमें उसका adaptation time जो होते हैं वो increase कर जाता है because rods are affected. Then we know कि bony spicules और pigmentation जो है वो mid periphery पे है। तो जब हम पेरीमेट्री करते हैं तो इनिशियली मिड पेरिफ्री के ऊपर स्कोटोमास आते हैं दैट कैन जॉइन टुगेदर, और फिर एक पूरा एक आइलैंड सिर्फ रह जाता है सेंट्रल विजन का, और पूरी मिड पेरिफ्री और पेरिफ्री इफेक्ट हो जाती है। सेंट्रल विजन को अगर आपने देखना है, उसको मॉनिटर करना है कि सेंट्रल विजन कैसे अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए माइक्रो पेरीमेट्री आप यूज कर सकते हैं। वो दैट इज अ लेटर स्टेजेस पे माइक्रो पेरीमेट्री यूज होगी जब ओनली सेंट्रल विजन इज लेफ्ट। देन वी हैव OCT। हम सस्पेक्ट करें कि इसके साथ ERM एसोसिएटेड है या सिस्टोइड मैकुलर एडीमा एसोसिएटेड है, तो फिर OCT हो सकता है। जेनेटिक एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। जनरली हमारे यहाँ तो नहीं होता, बट इन द आइडियल वर्ल्ड जेनेटिक एनालिसिस, उसके दो इम्पोर्टेंस हैं। एक है कि विटामिन A इस पेशेंट को देने का फायदा होगा या नहीं होगा, दूसरा चीज है कि पेशेंट के जेनेटिक काउंसलिंग में वो इम्पोर्टेंट रोल है उसका। Okay, differential diagnosis.
वो हर condition, every condition that causes the pigmentation of the peripheral retina, that will be included in differential diagnosis. कौन कौन सी है उसमें? azor है, syphilis है, retinal toxicity है due to some drugs like thyroidazine वगैरह से, और gyrate atrophy है. तो every condition that causes the hyperpigmentation or hypopigmentation or your bony skew-like appearance will be in the differential diagnosis. कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है इसका, और कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको एक पेशेंट जिसके अंदर जेनेटिक टेंडेंसी है उसको एक्सप्रेस करने से पहले, उसके अंदर सिम्टम्स अपेयर होने से उसको वी कैन स्टॉप दैट. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो होता है वो काउंसलिंग है, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टू. एक प्रॉपर डायग्नोसिस पेशेंट को कम्युनिकेट करना इज इम्पॉर्टेंट. पेशेंट को अवेयरनेस देना ताकि वो बच्चा प्रोफेशनली कौन सी फील्ड्स में जा सकता है या कौन सी फील्ड उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, उनकी उसकी लिमिटेशंस को उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना. उसकी एक्सपेक्टेशन जो है पेशेंट के आपके साथ रियलिस्टिक होनी चाहिए. वो फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, विच वोंट बी द आंसर. आप एट द बेस्ट उसको कह सकते हैं कि हम इस प्रोसेस की प्रोग्रेशन को रिटार्ड कर सकते हैं, हम उसको कंप्लीटली शायद स्टॉप भी नहीं कर सकते. तो उसकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन होप भी देना इज इम्पोर्टेंट. वरना पेशेंट फॉलो अप नहीं करेगा, वो बिल्कुल कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसकी डाइटरी, उसकी सनग्लासेस, अल्ट्रावायलेट रेस से उसकी प्रोटेक्शन, तो आप उसको एक होप देना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बाय रेगुलर चेकअप, what we will do that we will retard the progression of the disease. Screening of family members is important ताकि आपकी जेनेटिक काउंसलिंग और इस तरह से चीज़ों में इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं लेकिन कभी कोई फैमिली को हम कहते हैं लेकर आए, कभी कोई नहीं लेके आता. सो आई थिंक मतलब ये बहुत हमारे तो यहाँ बहुत लैक करता है ये कि फैमिली की स्क्रीनिंग नहीं होती. जेनेटिक काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट. जेनेटिक काउंसलिंग भी हम बेहतर तौर पे तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो सब जनरेशंस में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जेनेटिक एनालिसिस तो नहीं हो रहा. तो हम उसका फैमिली के पैटर्न को देख के एक आइडिया ही हो सकता है कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये 3 कंसेक्टिव जनरेशंस में आ गया है, तो फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसकी आगे से क्या हो गया. ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कजन मैरिजेस आप कैसे उनको काउंसिल कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए. अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और फीमेल पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ठीक है वो एक्सप्रेस तो नहीं करी डिजीज को, लेकिन उसके मैकुला के ऊपर एक गोल्डन कलर का रिफ्लेक्स होता है. तो आप उससे उसको आइडिया कैन हैव एन आइडिया, और आप उससे फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं कि उसके जो फर्दर उसकी जनरेशन में जो सन दैट कैन बी अफेक्टेड फ्रॉम द डिजीज. तो जेनेटिक काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट बट कैन नॉट बी डन विदाउट स्क्रीनिंग ऑफ द फैमिली मेंबर्स, बिकॉज हमारे तो यहाँ पे ऐसा जेनेटिक एनालिसिस भी नहीं होता. देन ट्रीटमेंट में एज आई मेंशन कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो इसकी प्रोग्रेशन को रोक सके या उसकी लॉस्ट विजन को बेहतर कर सके. लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हमने करना है वो ये कि रेगुलर फॉलोअप इज इम्पॉर्टेंट. उसको रिफ्रैक्टिव उसके एरर को ट्रीट करना. कोई ऐसा कंडीशन है जो उसको जिससे उसकी विजन बेहतर हो सकती है, लाइक अगर उसने सब कैप्सुलर कैटरैक्ट डेवलप कर दी है तो कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन उसके लाइफस्टाइल को, उसकी विजन को इम्प्रूव कर. कैटरैक्ट सर्जरी कैन इम्प्रूव. हेल्पिंग द पेशेंट विद अ लो विजन एड ताकि अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट बेटर हो सके. अवॉइड स्मोकिंग इज इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस में. एंड देयर सन ग्लासेस, स्पेशल सन ग्लासेस होती हैं, देयर नैनोमीटर कंट्रोल सन ग्लासेस. बाहर के लिए फॉर आउटडोर ये 550 नैनोमीटर्स एंड अबव लाइट को ब्लॉक कर देती है, और इनसाइड के लिए एम्बर ग्लासेस होती हैं दैट कैन ब्लॉक द रेज बिटवीन 511 to 527, जिससे पेशेंट की कंट्रास्ट सेंसिटिविटी और ज्यादा कंफर्टेबल पेशेंट होता है. और देन दिस सिस्टोइड मैकुलर एडिमा इन आरपी, वो भी एक कंडीशन है जिसको अगर आप जिस तरह कैटरैक्ट को ट्रीट करें तो पेशेंट की विजन विल इम्प्रूव. सिमिलरली सिस्टोइड मैकुलर एडिमा में पेशेंट विल इम्प्रूव. ओरल एसिटाजोलामाइड जो है दैट रिस्पॉन्ड्स वेल टू दिस कंडीशन. अब विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज वेरी ट्रिकी बिकॉज इट डिपेंड्स कि हमें पता है कि जो एज रेटेड आई डिजीज स्टडी है दैट शोड कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए जो है स्मोकर्स में इट कॉज लंग डिजीजेस, लंग कैंसर की उसके अंदर प्रेवलेंस ज़्यादा है. देन हमें पता है वी नो दैट हेपेटोटॉक्सिक है,
pregnant or a woman who wants to get pregnant, उसमें vitamin A can is contraindicated. Then vitamin A, so vitamin A can cause improvement in a certain group of genetic group of patient with the RPE जिनके अंदर RH gene जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, एंड पेशेंट जिनके अंदर ABCA4 जीन इन्वॉल्व होती है उनके लिए इट विल फर्दर कॉज द ड्यूरिएशन. तो अब बिकॉज इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास जेनेटिक एनालिसिस नहीं है, तो इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट विटामिन ए, तो फिर हम इनिशियल स्टेज पे पेशेंट को उसके लिवर फंक्शन टेस्ट, उसका बहुत शॉर्ट टर्म और रेगुलर एग्जामिनेशन, उसकी विजुअल एक्विटी और उसके विटामिन ए के ब्लड लेवल्स जो है वो मॉनिटर करेंगे. इसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट जो है वो दैट इज ऑल्सो गिवन इन दैट इज एज रेटेड आई डिजीज स्टडी, was कि आप बीटा कैरोटीन या विटामिन ए के बगैर की बजाय यू कैन यूज ल्यूटिन एज ज़ैथिन, और डोज वही है जो उसमें रिकमेंडेड है, दैट इज ल्यूटिन is 10 मिलीग्राम और ज़ैथिन 2 मिलीग्राम. तो इसी डोज में इंस्टेड ऑफ विटामिन ए जो कितना ट्रिकी है और बॉर्डर लाइन पे है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद ल्यूटिन एंड ज़ैथिन. इनमें से कोई भी चीज अभी उस तरह से ना कॉमन है ना उसके कोई इतना मतलब सक्सेस रेट हमें नोन है, बट ट्रायल्स आर गोइंग ऑन. जो फ्यूचर डायरेक्शन है इसमें जीन थेरेपी है, स्पेशली लेबर के अंदर ये काफी पेशेंट्स के अंदर जो ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं उसके अंदर एडिनो वायरस एसोसिएटेड इम्प्लांट है आरपी जीन का, that is जो आपने सब रेटिनल दिया है इसमें it has improvement is seen in that. Then we have ciliary neurotropic factors. ये clinical trials हैं जिसमें RP cells that produce ciliary neurotropic factor वो introduced into the eye, expecting कि patient के अंदर photoreceptors बेहतर हो जाएंगे. Anatomically ciliary neurotropic factors इन patient को दिया गया, anatomically उनमें improvement आई थी, लेकिन subjectively उनकी vision बेहतर होने में, उनके विजुअल फील्ड बेहतर होने में ऐसी कोई सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट नहीं थी. तो सिलियरी न्यूरोट्रोपिक फैक्टर वाज एसोसिएटेड विद द एनाटॉमिकल इंप्रूवमेंट बट देयर वाज नो सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट. देन वी हैव रेटिनल प्रोस्थेसिस. रेटिनल प्रोस्थेसिस के अंदर पेशेंट जिनको ऊपर ट्रायल्स हुई दे एक्सपीरियंस अ सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट इन जिनके अंदर आपने रेटिना के अंदर ऊपर डायरेक्ट चिप लगा दी दैट स्टिमुलेटेड द फोटो रिसेप्टर्स. सर्जरी है, एक आर्गस 2 इम्प्लांट है, उसके अंदर एक इम्प्लांट इटसेल्फ है, एक वीडियो रिकॉर्डर है, एक ट्रांसड्यूसर है. और आर्गस 2 इम्प्लांट्स में उन लोगों के अंदर जो ट्राई हुआ था जिनके अंदर बिल्कुल विजुअल लाइट परसेप्शन भी नहीं थी, देयर वाज ऑलमोस्ट नो लाइट परसेप्शन और देयर वाज अ बेयरली लाइट परसेप्शन. उनके अंदर द पेशेंट विद इम्प्लांट और विदाउट इम्प्लांट के अंदर दे कैन रिकॉग्नाइज द डोर, देयर पाथवेज, अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा उनको हेल्प मिला था. बट अब ये आर्गस 2 इम्प्लांट भी ये इट्स नॉट बीन मैन्युफैक्चर्ड. इसके अलावा एक और इम्प्लांट, ये रेटिनल इम्प्लांट है, और एक और इम्प्लांट जो जिस पे अब ज्यादा काम हो रहा है दैट इज एन ओरियन इम्प्लांट जो कि डायरेक्टली विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर इम्प्लांट होता है. तो ये इट्स न्यू इम्प्लांट जिसके ऊपर अब काम हो रहा है. देन अगेन जीन थेरेपी एक है जिस डायरेक्शन में आप ये सब टिपिकल आरपीज हैं. और एटिपिकल आरपी इज अ कंडीशन जिसके अंदर आई के अंदर दे आरपी लाइक कंडीशन बट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर सिस्टमिक फैक्टर्स. इसके अंदर उशर सिंड्रोम है व्हिच इज ऑटोसोमल रिसेसिव. इसके अंदर हेयरिंग लॉस होता है और इसके भी 2 टाइप्स हैं 1 and 3. 1 के अंदर देयर 50% बच्चे विच आर कंप्लीटली ब्लाइंड एंड आर डेफ आर उशर सिंड्रोम के बच्चे होते हैं. एंड टाइप 3 जो है उसके अंदर skeletal abnormalities are associated with it and it's also mental retardation that is associated with it. Then Kearns-Sayre syndrome is a condition in which the chronic progressive externophthalmoplegia is associated with it. It's a mitochondrial disease. इसकी mitochondrial inheritance pattern है. Then we have a Besson syndrome. This is dyslipoproteinemia होती है. There is a defective absorption of fat soluble vitamins that are A, D, E, K. एंड इट इज नॉट कंपैटिबल विद लाइफ. इसके अंदर लाइफ का स्पैन इतना नहीं होता बिकॉज इसके अंदर स्वेयर स्पाइनोसेरेब्रल एटैक्सिया होता है, सिस्टमिक एब्नॉर्मैलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं. देन वी हैव रेप्सम सिंड्रोम व्हिच इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव एंड इट इज एसोसिएटेड विद फाइटेनिक एसिड इंटॉलरेंस. सो आपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी होती है फाइटेनिक एसिड की. In this Repsum syndrome, they are RP-like condition and it is associated with neurological abnormalities. Then we have Bartle-Biedl syndrome.
in which the patient is obese, there is polydactyly, there is renal abnormality that is associated with this, and other conditions, systemic conditions. ये भी different variations हैं that we can see with RP. RP sign pigmento, in which there is retinitis pigmentosa. Sign pigmento is a condition in which we have all the clinical signs, symptoms of RPE. Vascular attenuation is there, pale waxy disc is there, but if these patients, they lack the typical bony spicules. Then we have retinitis punctata albicans, that in this condition वो जो typical black spicules होते हैं वो नहीं होते, instead यहाँ पे white या yellowish color के spicules होते हैं. Then we have sectoral RPE, in which it can be unilateral, in which a segment of the fundus is involved, but it has a very good prognosis, and mostly inferior part of the fundus is involved. And then we have Leber congenital amaurosis, that is seen in the children. इसमें oculodigital syndrome होता है, patient deafness associated होती है, neurological abnormalities हैं, skeletal abnormalities हैं. It's a very early presentation है. Half of the children जिनको known cause of the blindness at the birth है, उनमें one is Leber congenital amaurosis. That's it. Thank you. She has covered all aspects of the presentation of the topic. So a few things I would like to repeat is our professor General Naseem used to say, if you see even one spot of pigment, it can be retinitis pigmentosa. So it's not necessary to have extensive pigmentation. The pigmentation varies with the mode of inheritance. So what we do in these cases when we want to see which family member is involved, what is the term used? We plot पेडिग्री. सो वी ड्रॉ पेडिग्री और देखते हैं जी चाचा मामों में से कौन कौन इन्वॉल्व है, दादा और नाना उनमें से, सो मिटरनल एंड पिटरनल साइड, और भाई बहनों में से कौन कौन इन्वॉल्व, बच्चों में से कौन कौन से इन्वॉल्व, तो हमें पता चलता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड. So I was in Australia and John Gregg was, I used to assist him. Later he became professor of Sydney University. His wife was genetist, dealing with the genetic studies. So he used to photograph the cataract, what is the mode of inheritance and what is the morphological picture, and so in the Western world, this gene analysis and counseling are very important topics, because most of the diseases are genetic diseases. They are trying to sort of counter. In our setup, the infections are more common. हमारे यहाँ जरासीम ही नहीं खत्म हो रहे. They have done with good antibiotics, antiviral and vaccinations. They have eradicated infections almost. दरमियान में थोड़ा सा एड्स का आया था जिसमें इन्फेक्शंस ज्यादा हुई, वो भी उन्होंने कंट्रोल कर दिया रेट्रोवायरल थेरेपी से. सो देयर इंटरेस्ट इज इन जेनेटिक डिजीजेस एंड retinitis pigmentosa is one of them. Is very common in our setup also, because cousin marriage, which is called consanguinity. सो हमारे यहाँ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज हैं जो कि नॉर्मली सोसाइटी में कम होती हैं, लेकिन एक ही फैमिली में कजन में रिसेसिव इसमें भी है इसमें भी है, इंटर फैमिली मैरिज हुई तो डिजीज मैनिफेस्ट कर गई. सो ये हमारी जेनेटिक काउंसलिंग क्या एडवाइस करते हैं कि भाई इसकी शादी करते वक्त ये ख्याल रखें कि दूसरे पार्टनर में भी ना डिजीज हो. सो दिस इज वेरी वाइटल. अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जिक्र किया उन्होंने विटामिन ए का, तो ये एक पूरा अलहदा टॉपिक है. सो विटामिन ए एंड विटामिन डी आर फैट सोल्युबल विटामिन्स,
and they are stored in the liver. The deficiency only occurs in the neonates in the first 6 months or 1 year of life, because at that time liver does not have sufficient vitamin A. And those patients who have diarrhea, especially steatoria. What is steatoria? Fatty stools. So malabsorption syndrome, in which fat does not is not absorbed and is excreted in the stools, they are more liable to develop vitamin A deficiency, because this is a fat soluble vitamin. When the fat is absorbed, vitamin A is absorbed. After an age of 1 or 2 years, the liver has sufficient vitamin A. Deficiency does not occur even if you have vitamin A deficient diet for, let's say, 1 year. Because the disease was common previously, so the government has ordered that all the edible oil should have vitamin A and D supplement. उसी वो आप खबरों में भी सुनते हैं, इश्तिहार में भी है कि विटामिन ए और डी से भरपूर। अब हर जो ऑयल घी है उसमें विटामिन ए डालना एक कंपल्शन है। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी अब खत्म हो गई। जो पहले हम देखते थे ना, वाइट आउट स्पॉट, नाइट ब्लाइंडनेस और स्क्लेरोमलेशिया पर, और ये जो कॉर्निया मेल्ट हो जाता था, क्या कहते थे उसको? Keratomalaysia. So, an additional point is that vitamin A is not excreted in urine. So, vitamin B or C are excreted in the urine. So, if you take extra B and C, they will not do any harm. But vitamin A and D are stored in the body and they can cause overdosage, toxicity. So vitamin A. So it is better to have vitamin A levels if you are administering treatment. वो कैप्सूल होते हैं, वो है 10 लाख यूनिट्स का एक कैप्सूल होता है। तो छोटे बच्चे को हम आमतौर पे 2 कैप्सूल एक दिन एक दिन दो, उसको खोल के पंक्चर करके मुंह में डाल देते हैं। सो 6 months 1 year का जो चाइल्ड है उसमें इंडिकेशन बनती है if family members have retinitis pigmentosa. अगर retinitis pigmentosa आ गया, मतलब retinitis pigmentosa नहीं कहना चाहिए, उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी कहना चाहिए कि जो पिगमेंटेशन, रेटिनल पिगमेंटेशन 6-7 साल के बच्चे में आ गई, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वी हैव टू लुक फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी इन दैट पेशेंट सिबलिंग्स। जो छोटे बहन भाई हैं 1, 2, 3 साल के, उनमें हमें देखना है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी तो नहीं, उनको ट्रीट करना है। सो दिस इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा विटामिन ए। क्यों विटामिन ए में भी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो हमें वो कंसिडर करना है। बाकी जो आपने कहा विजन कम हो जाती है, सो एक तो कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लाकोमा। वी डोंट हैव टू, वी शुड नॉट निग्लेक्ट दीज एस्पेक्ट्स। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जी कुछ नहीं हो सकता, ग्लाकोमा और कैटरेक्ट तो हम मैनेज कर सकते हैं ना। अब बाकी रह गया मैकुला। मैकुला पे जो है वो एट्रोफी हो सकती है, एडिमा हो सकता है। एट्रोफी का हम कुछ नहीं कर सकते, एडिमा के लिए क्या कर सकते हैं? ओरल एसिटाजोलाम। तो कैसे देखेंगे मैकुलर एडिमा को? ओसीटी। सो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के केस में अगर वीएन कम है तो हमने डिसाइड करना है इज इट एट्रोफिक मैकुलोपैथी और एडिमेटस मैकुलोपैथी, और ये ओसीटी पे ही पता चलेगा। अगर एडिमा होगा तो दे दें उस ओरल एसिटो, अगर नहीं है, रेटिनल थिनिंग हुई हुई है, एट्रोफिक मैकुलोपैथी है, तो कुछ नहीं कर सकते। ये कायद आज़म के वो जो मुआलिज थे उसका क्या नाम था? कर्नल इलाही बख्श, जो आखिरी टाइम पे उनको ज़ियारत में भी देखते रहे और ट्यूबरकुलोसिस के लिए वो ट्रीटमेंट भी, उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन आई थी नई नई इंग्लैंड में, तो वहाँ से खैर मंगा के दी उन्होंने। सो उनका जो पोता है कि पर पोता है वो अमेरिका में, तो उसने ये इंट्रोड्यूस कराया था रेटिनल इम्प्लांट।
उसने जो की हुई है ना स्टडीज, वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट है और वो कोई इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी किए हुए उसने, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, अकबर के कोई इस तरह का नाम। तो ओबामा ने उसको स्पेशल एक वो भी दिया था, मतलब ऑनर किया था उसको किसी मौके पे। सो एक ये एक्सपेरिमेंटल अटैच कर दिया, चलो। सो दिस इसको कह रहे थे जी चिप लगा देंगे रेटिना पे तो पेशेंट की विजन इंप्रूव करेगी, स्टिल एक्सपेरिमेंटल। मेरे पास कुछ मैगजीन्स हैं, उनके आर्टिकल्स आते हैं रिव्यू होने के लिए। सो एक चाइनीज आर्टिकल मेरे पास आया था, मुझे भी याद है। उन्होंने क्या किया हुआ था कि आर्टिफिशियल कैमरा, मतलब इस तरह था कि वो कैमरे में मेमोरी स्टोर कर दी और उसको ग्लासेस के साथ या आई के साथ अटैच कर दी, तो जो साइन बोर्ड आता था ना वो रीड करके उसको बोलता था, तो उसमें 7 स्पीकर भी थे। तो मतलब एक पेशेंट ब्लाइंड है, वो जब जा रहा है तो वहां पे टॉयलेट्स का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो कैमरा जब उस पे वो आंख हिलाएगा, उसको देखेगा तो वो बोलेगा टॉयलेट्स राइट साइड, इस तरह। जेब्रा क्रॉसिंग आई तो वो जो कैमरा उसको रिकॉर्ड करके। सो रेटिनाइटिस पिगमेंट, अब पेशेंट की वीएन कम है तो लो वीएन डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं, वो भी एक टॉपिक है कि लो वीएन डिवाइसेस किस पेशेंट में नजदीक की नजर कम है, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस में दूर की नजर कम है उसको हेल्प कर सकते हैं। और ये नेविगेशनल वीएन जिसको कहते हैं कि चलने में उसको आसानी हो, ये एक अलग टॉपिक है। सो हाँ, जरा दिखाएं जरा वो, हाँ मैं उसके साथ अटैच करें ना, उठाइए अरे देखें, लो इसको उसको उधर कर दें, कैमरे को हाँ। अर्ली इंटरवेंशन जिन पेशेंट में बाई एलिलिक म्यूटेशन हो, उनमें कहते हैं कि कुछ फायदा मिल जाती है जो सर्जिकली जो सबरेटिनल यूज करते हैं। ओ वो स्क्रीन नहीं आई मेरे ख्याल है। ओके, सो ये मैं चाह रहा था कि आपको बताएं कि जी ये पावर पॉइंट की स्लाइड है। सो आप पहले ये चाहते हैं कि सिर्फ ये एक, आप इसको सिलेक्ट कर लें, ये फोटोग्राफ है और ये एनिमेशन में आपने अपीयर का वर्ड यूज किया, ये अपीयर के लिए तो पहले ये अपीयर होएगी, ठीक है। और ये फिर आपने दूसरी फोटोग्राफ सिलेक्ट कर ली और ये अपीयर किया तो ये नंबर 2 हो गया, ये ऊपर लिखा हुआ है नंबर 2। फिर उसके बाद आपने ये जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको अपीयर आपने किया, ये नंबर 3 आ जाएगा, ये देखें नंबर 3 आ गया, ठीक है। सो आपने, अब आप स्लाइड शो में आ जाए। हाँ जी, बस हो गया। पावर पॉइंट ही बंद कर देंगे। सो आप हाँ, तो मकसद ये है कि पहले आप एक फोटोग्राफ दिखाएं और पूछें, आप ये पूछें, चलो मैं इधर करके दिखा देता हूं आपको। ये तो जब करेगा तो करेगा, मैं विल बी एबल टू, ये वर्ड्स हैं जो कि मेडिकल एजुकेशनिस्ट पसंद करते हैं कि इसी तरह लिखे जाए, और उसके आगे आपने लिखना है ऐसे वर्ड जो एक्शन वर्ब है कि आपने 1 घंटे का लेक्चर दिया, अब घंटे के बाद ऑडियंस क्या करके बताएंगे तो आपको पता चलेगा जी ये चीज उनके जहन में गई है, तो वर्ड यूज करते हैं डिस्क्राइब, एनलिस्ट, एक्सप्लेन, chalk out a plan, devise a strategy, ठीक है। इसको हम करते रहेंगे बाद में भी, आज के लिए इतना काफी।